Morning students, how are you? I know you are very well and I am also well. So we are going to start our new class, new chapter, HTML. As you know that in the last chapter we have to study computer network, and now we are going to start to our next lesson, HTML. It means hypertext markup language. It means hypertext markup language. Okay, it is our next class right now. HTML, hypertext markup language, is an easy to understand language to creating and designing web pages. It is a set of markup symbol or code inserted in a file instead for display on a World Wide Web page browser. The markup tell the web browser how to display a web page, words and image for the user. Basically, it is building blocks for web page. The word hypertext means any text on the web page can be linked with another website page, enabling the user to move around the web. This means when you click on the hyperlink, web browser will take you to another web page it is linked with. The word markup means to make the text written inside the tags as certain type of text for displaying in particular style. The feature of HTML are: it is easy to use and understand. It is not case sensitive. That means that is treat HTML and HTML as same. It is supported by every web browser software. There is no need to install a special software. The program Notepad can be used to written an HTML. Okay, hypertext markup language, easy to understand language. It means hypertext markup language जो हमारा होता है बहुत ही आसान लैंग्वेज है. इसको हम आसानी से समझ सकते हैं. कोई भी वेब पेज में इसको हम ओपन कर सकते हैं. इसके लिए कोई एक्स्ट्रा वेब पेज की जरूरत नहीं होती है. यह एक सिंबॉलिक कोड होता है जिसके थ्रू हम लोग अपने वेब पेज, इट मीन की वर्ल्ड वाइड वेब पेज पर इसे फॉलो करते हैं. द मार्कअप टेल द वेब ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले अ वेब पेज. इट मीन इसमें एक मार्कअप होता है जो कि वो हमारे लिए बताता है कि हम लोग कैसे इस पर अपने आप को ला सकते हैं. इट मीन कोई भी जब हम कोडिंग करते हैं अगर अपने पेज पर, तो उस कोड के द्वारा अपने वर्ल्ड वाइड पेज पर हम कैसे देखेंगे, ये मार्कअप हमें बताता है. हाइपरटेक्स्ट मीन एक फाइल से दूसरे फाइल को लिंक कराना. इट मीन कोई भी वर्ड को हम लोग लिंक करा सकते हैं और लिंक कराने के बाद हम लोग जब चाहें उसको जब हम ओपन करते हैं और उस लिंक फाइल को जब हम क्लिक करते हैं, इट मीन कि वो दूसरे फाइल को भी ओपन कर देता है. इट मीन यह हमारे ब्राउजर को ओपन करता है. मार्कअप, इट मीन किसी भी चीज के लिए एक मार्कअप लैंग्वेज होती है. जैसे कि अगर हमें मंदिर को ढूंढना है तो वहां पर मंदिर का सिंबल बना रहेगा. मस्जिद को खोजेंगे तो मस्जिद का सिंबल बना रहेगा. ठीक उसी तरह से यह भी एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसके द्वारा हम लोग अपने इस सिस्टम को मार्किंग करते हैं. यहाँ पर कुछ फीचर्स दिए गए हैं HTML के. पहला इसमें फीचर है इट इज इजी टू यूज एंड अंडरस्टैंड. यह बहुत ही आसान होता है उपयोग करने के लिए और समझने के लिए. इसके बाद दूसरा है यह केस सेंसिटिव नहीं होता है. इट मीन अगर हम इसको लिखना चाहेंगे लाइक दिस HTML और like this HTML, so there is no need, there is no any confusion. He can understand very well. Okay, now there is no special software to install. Notepad is the special software to code, to write codes. Now a structure of HTML document. The tags along with their attribute make the text and image appear attractive on web page. The HTML document code can be written in any text editor, for example, Notepad. It is the save with .html or .htm extension when the save file is opened with any web browser. To create HTML is shown as an web page. The HTML document is written using HTML element consists of tags enclosed in angle brackets. All basic tags that have separate start and end tag are called container tag. Other tags which have just a start tag and no end tag are called empty tags. So there is a one code is there / doc type HTML head title, page title, title head, body,
H1 my first heading, H1 close, page my first page, paragraph P close, body HTML. The doc type HTML declare define this document of to be HTML. The HTML element is the root element of an HTML page. It is present at the beginning of your document. The bracket slash HTML bracket close, it is present at the end of your document. The head element contain main information about the document. The title element specify a title of the document. The body element contain the visible page content. The H1 element define a large heading. The P element is define a paragraph. Structure of HTML document. It means how to write. What is the structure? Okay. The tags along with their attributes make the text and image appear attractive on वेब पेज. इट मीन कि इसमें टैग्स का यूज होता है जिसके द्वारा अपने वेब पेज को अट्रैक्टिव बना सकते हैं. द HTML डॉक्यूमेंट कोड कैन बी रिटन इन एनी टेक्स्ट एडिटर. नोटपैड इज द मोस्ट. इट मीन कि हम लोग किसी भी टेक्स्ट एडिटर में अपने इस कोडिंग को लिख सकते हैं, या तो नोटपैड हो, वर्डपैड हो, कोई भी हो. ओके. नाउ इट इज सेव्ड विथ .html. इट मीन जब हम अपने फाइल को सेव करते हैं तो .html और .htm किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं. ओके. नाउ इट इज एक्सटेंशन नेम. लाइक डॉक्यूमेंट का होता है .doc, एक्सेल का होता है .xls. इसी तरह से हमारे HTML के ये टैग्स होते हैं एक्सटेंशन नेम. ओके. जब हम इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद हमारे जो क्रिएटिंग वेब पेज होते हैं वो किसी भी वेब ब्राउजर में ओपन हो जाते हैं. इसके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा वेब ब्राउजर की जरूरत नहीं होती है. चाहे वो गूगल क्रोम हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, किसी में ओपन कर सकते हैं. अब यहाँ पर कुछ देखिए बताया गया है कि ऑल द बेसिक टैग्स आर सेपरेट, स्टार्ट एंड इन टैग. इट मीन सभी के पास एक स्टार्ट और एक इन टैग्स होते हैं. बट कुछ ऐसे भी टैग्स होते हैं जिनके पास स्टार्ट टैग तो होते हैं लेकिन एंडिंग टैग नहीं होते हैं. तो जिनके पास स्टार्ट टैग्स होता है उसे हम लोग कंटेनर टैग बोलते हैं, और जिनके पास नहीं होता है उनको हम लोग एम्प्टी टैग्स बोलते हैं. अब आइए देखिए एक कोडिंग हम लिख रहे हैं. ओके. सो यू कैन सी दैट हियर वन आई हैव रिटन अ वन कोड इज देयर, लाइक ब्रैकेट इज देयर बोथ साइड. doc type HTML head title page title. here is a one figure is there slash. it mean कि इसे हम लोग क्लोज बोलते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर पहला है हमारा doc type HTML. इट मीन ये होता है कि यह हमारे डिक्लेरेशन करता है डॉक्यूमेंट को, यह किस तरह का डॉक्यूमेंट है. इट मीन कि यह HTML डॉक्यूमेंट है. दूसरा हमारा आता है HTML. यह क्या हमें डिफाइन करता है कि यह रूट डिफाइन करता है. यह हमें बताता है कि हम लोगों ने अपने प्रेजेंटेशंस को शुरू किया है. इसके बाद यहाँ पर हमने एक HTML को यहाँ पर मैंने क्लोज किया है. तो क्लोज करने का मतलब कि हम लोग कोई भी फाइल अगर लिखते हैं तो हमारे HTML और इस लास्ट में HTML पर, तो जब हमने इसको ओपन किया है यहाँ पर हम लोग एक स्लैश का साइन लगाएंगे और क्लोज करते. इसी के बीच में हम वो सारी चीजें लिखेंगे जो हमें लिखनी होती है. इसके बाद हमारा हेड आता है. हेड क्या होता है? यह एलिमेंट के कंटेंट मेन इंफॉर्मेशन को बताता है कि हम लोगों ने हेड क्या लिखा है. ओके. जैसे कि आपके बुक्स के हेडिंग होते हैं, वो हमारे मेन हेडिंग क्या है, बुक का चैप्टर नेम होता है. उसी प्रकार आता है आपका टाइटल. अब हम टाइटल क्या लिखते हैं कि वो पेज का टाइटल होता है कि हमारे किस तरह के पेज के टाइटल है. इट मीन कि वो हम अपने टाइटल्स को बताएंगे. इसके बाद आता है बॉडी. यहाँ पर बॉडी भी आता है. तो बॉडी एलिमेंट जो होते हैं इनमें सारे विजुअल्स होते हैं जो भी हम लोग लिखते हैं बॉडी में. जैसे कि हमने एक पैराग्राफ लिखा है तो उस पैराग्राफ को हम लोग पढ़ सकते हैं कितने पैराग्राफ हम लोगों ने लिखा है. इसके बाद H1 आता है. इट मीन कि इसकी हेडिंग होती है. H1 मीन्स हेडिंग. ये पहला हमारा हेडिंग होता है. इसके बाद P आता है. P माई फर्स्ट पैराग्राफ. तो यह हमारे पैराग्राफ को बताने के लिए होता है. और हमने यहाँ पर बॉडी क्लोज कर दिया और HTML को. इट मीन कि जो भी चीजें हम ओपन करते हैं उसको क्लोज करना बहुत जरूरी होता है. ना आगे पढ़ेंगे टैग्स and their attributes. Body. The body tag tell the browser that the text contained between body and body close tag. It is text that does from part of the web page and must be shown on the web page. It is also a container tag. The body tag can be used within the following attribute. BG color. The BG color attribute allow you to set the color of the background. Slash body color equal sign double inverted comma blue bracket close.
A page with that body will have a blue background text. The text attribute allow you to set the color of the text. Bracket body text is equal to bracket double inverted comma red bracket close. A page with the body will have red text. Background. The background attribute allow you to set an image as the background. Bracket body background equal sign monkey.jpg or background close. Okay, tags and their attributes. First one is body. The body tags tell the browser that text contained between body and body close is the text that does from part of the web page. It must show on a web page. It mean body, it mean जो भी चीजें हम लोग लिखते हैं, जैसे कि हमारा हेड होता है, ओके, हेड और फुट, तो इनके बीच में हमारी बॉडी होती है, वो दिखाई देती है, वही दिखाई देता है, ओके। तो इसी तरह से हमारे इस वेब ब्राउजर में भी होते हैं, जो भी बॉडी के कंटेंट्स होते हैं वही हमें दिखाई भी देते हैं। तो इसमें अगर इनके बॉडी को हमें बदलना होता है, लाइक हम लोग भी बदलते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, हेयर स्टाइल चेंज करते हैं, ठीक उसी तरह से अपने बॉडी के भी चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो बीजी कलर यूज करते हैं। बीजी कलर क्या होता है कि यह आपको करेगा, इसका टेक्स्ट आता है, तो टेक्स्ट एट्रीब्यूट के द्वारा हम लोग टेक्स्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं। और इसके बाद बैकग्राउंड आता है, तो बैकग्राउंड के द्वारा हम लोग बैकग्राउंड में कोई भी इमेज लगा सकते हैं, जैसे अपनी फोटोज होंगे, आप लोग देखे होंगे कि जितने भी ये सारी चीजें आती हैं वेब ब्राउजर पर, तो उनके पीछे कुछ अट्रैक्टिव फिगर भी लगे होते हैं। सो गाइज, आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। थैंक यू।